तो जितनी ज़्यादातर आप लेडीज़ से इंटरैक्ट करते हैं अलग-अलग लेवल्स पे, तो आपको पहली बात तो एक वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि आपने एक्चुअली किसी लेडी को ट्रीट कैसे करना है। आप जितना जिस चीज़ को दबाएँगे या छुपाएँगे, उतनी क्यूरियोसिटी लेवल और बढ़ेगी। अगर मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, आप उसको कहेंगे कि इसको मत छेड़ना, इसके इसके अंदर तुमने हाथ नहीं डालना है, वो वहीं हाथ डालेगा। लेकिन अगर आप उसको समझा दें कि इसके अंदर हाथ आप अच्छा खासा उसको रीजनिंग दे दें, तो उसकी क्यूरियोसिटी लेवल खत्म हो जाता है। आप देखिए फीमेल्स मेल्स दोनों की साइकोलॉजी अलग है, बायोलॉजी अलग है, सब कुछ ही अलग है और बहुत ऑपोजिट्स हैं। तो जब ये ऐसे दो बीइंग्स जिनका सब कुछ ही अलग है, आप सेम तरीका नहीं अपना सकते दोनों को। आई थिंक सबसे बड़ी मेंटालिटी जो मैंने अलग अलग केसेस में देखी है वो है दो चीज़ें। एक होता है बदला, जनरली कोई आपका एक्स बॉयफ्रेंड होता है या किसी बंदे से आपको दुश्मनी है, वो करता है। दूसरा जिसको हम कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर, कि मतलब शायद आपने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है या आपने थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया होगा, लेकिन उसको मजा आ रहा है आपकी बर्बादी देख के। Hello, everyone. Good evening, namaste, good morning from whichever part of the world you're joining. And I'm back with another episode of Men's Talk Town. So, इस चैनल पर हम जनरली अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग प्रोफेशन से एक्सक्लूसिवली मेन यानी कि पुरुषों को बुलाते हैं और उनका व्यू पॉइंट जानते हैं फीमेल्स के बारे में. सो व्हाट इज देयर व्यू पॉइंट और पर्सपेक्टिव अबाउट फीमेल्स. So the intention of this podcast is, one is to know the men mentality about women, and also to create a safer space for women. Because if we increase better communication, if we have better understanding of men and women, or rather how men think about women, I think we can create a better space and a safer space for women. Today we have another eminent personality. आज हमारे साथ हैं Mr. Sakshar Duggal. Welcome, Sakshar. थैंक यू सो मच सोनाली। How are you doing? All good, and I'm equally excited to be here at your show. Thank you. It's an honor and it's really great to have you on this show. So I'm quickly going to introduce you. So there is something very special about Mr. Sakshar, and which I'm going to spell it out now. So Mr. Sakshar, he is a 19 times TEDx speaker and is recognized as an artificial intelligence law expert. He is also an esteemed member of the Forbes Communications Council. He has been a guest speaker at prominent organizations, United Nations Main Office, Harvard University's HPERIX, Defense Research and Development Organization, DRDO, All India Institute of Medical Sciences, National Institute of Disaster Management. Wow! That's really impressive. And he gives trainings to company founders, corporates, and working professionals on subjects like AI crimes, cyber laws, business communication, public speaking, etc. I think, Sakshar, this is a great achievement and very important topic as well. तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, आपके बैकग्राउंड के बारे में और करियर के बारे में. श्योर, थैंक यू सो मच सोनाली। एंड ट्राई कर रहे हैं थोड़ा बहुत। वी आर आई से थोड़ा लकी रहा हूँ मैं कि टॉपिक थोड़ा ट्रॉपिकल है, लोग सुनना चाहते हैं, दे वांट टू लिसन अबाउट इट। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, यू मेंशन्ड अ ब्रीफ अबाउट मी, बट या वन एस्पेक्ट व्हिच आई वुड लाइक टू हाईलाइट अपॉन is that I've been doing theater for the past 15 years now. I do some films and ads as well, and I think theater has been one of the most critical parts of whether you say speaking or whether you say interacting with people, and the topic of a show as well when we talk about women. So during my theater, I've interacted with different women of different backgrounds, different age groups. So it's a whole learning experience altogether. You understand different mindsets of different women. राइट. तो मुझे लगता है ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है आपके लाइफ का, जो आपने थिएटर ऐड किया. और सिंस आई ऑल्सो डू थिएटर, बट नॉट एट probably at what level you do, a little bit of theater, and I totally agree that be it communication, be it interacting with people, ये बहुत important है. मतलब it adds lot of value. So thanks for highlighting that और हमें बताने के लिए that आप थिएटर भी करते हैं आपके प्रोफेशन के अलावा. That's wonderful. तो आपका क्या थिएटर प्रोफेशनली है और इट्स जस्ट अ हॉबी? Well, I would say it's professionally. मतलब इनिशियली तो मैंने थिएटर ही करना था, थिएटर एक्टिंग में हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा है, बट देन आई रियलाइज कि थोड़ा आपको ब्रेड एंड बटर भी कहीं से अर्न करना पड़ेगा साथ साथ. एंड देन कोविड हैपेंड तो ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान यहाँ साइबर इस सब में ज़्यादा चला गया. एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं लग बाई चांस ही है कि उसके बाद एआई आ गया.
एआई में थोड़ा काम करना शुरू हो गए, स्पीकिंग में इंटरेस्ट आ गया, तो अब जाकर आई कैन से आई एम बैलेंसिंग बोथ दीज थिंग्स। सो आई थिंक इट्स ऑल इंटरलिंक्ड और एक के बाद एक चीजें होती गई और इट फेल इन प्लेस फॉर यू, सो दैट्स वंडरफुल। सो जस्ट लेट्स जस्ट डाइव डाउन इनटू आवर टॉपिक। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कौन कौन सी महिलाएं हैं और उनका योगदान कैसे रहा है आपकी लाइफ में? वेल द इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब मेरी आपसे बात भी हो रही थी इस पॉडकास्ट के रिगार्डिंग, सो सबसे पहली चीज़ यही मेरे दिमाग में आई, मैंने वाज सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग कि मेरे लाइफ में जनरली महिलाओं का ही रोल रहा है, चाहे वो बचपन से मदर ऑब्वियसली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता था कि मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, तो वो दोनों वैसे ही बहुत बिजी रहते थे, तो मेरे को नानी घर पे छोड़ दिया जाता था। अब मेरी नानी घर पे मेरी नानी थी, मेरी मामी हैं, दोनों नानी मामी अभी भी हैं, तो और वो उस टाइम से अब तक अच्छा खासा उन्होंने मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी आधी अपब्रिंगिंग नानी घर में हुई है और आधी मेरे घर में हुई है। तो उन्होंने वहाँ किया, मतलब दिन में मैं वहाँ होता था, शाम को आप मदर के पास होते थे, तो कहीं ना कहीं इनिशियल जो आपके अपब्रिंगिंग जो डेवलपिंग ईयर्स हैं वो यहाँ पे केटर हुआ। जैसे जैसे बड़े हुए तो ठीक है मेल फ्रेंड्स थे, बट फीमेल फ्रेंड्स भी काफ़ी सारी बनी, उनसे भी बात हुई। और करते करते कॉलेज में तो मुझे याद है कि मेरे मेल फ्रेंड्स थे ही नहीं ज़्यादा, फीमेल फ्रेंड्स ही थी, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कुछ हो। एंड आई थिंक थिएटर भी एक बहुत बड़ा मीडियम रहा है, बिकॉज वहाँ ज़्यादातर फीमेल्स भी होती हैं, एंड वेदर इट्स डांसिंग, सिंगिंग, वो है। फिर आज भी एट प्रेजेंट ऑल्सो आई थिंक देयर हैव बीन डिफरेंट लेडीज ऑल टुगेदर। मेरी जो गुरु हैं वो भी एक लेडी हैं, हमारी थिएटर डायरेक्टर। जो मेरे जो लीगल साइड से मैं जिनसे एडवाइस लेता हूँ, तो उसमें भी ज़्यादातर लेडीज़ हैं। तो हर जगह अगर मैं देखूँ, लेडीज़ ने अलग अलग रोल्स निभाए हैं मेरे को शेप करने के लिए। राइट। सो मुझे लगता है कि जो लोग अपने दादा दादी या नाना नानी के यहाँ ज़्यादा रहते हैं बहुत लकी होते हैं, बिकॉज आजकल तो वैसा कम कम देखने मिलता है न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से। सो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि आपके यहाँ मतलब हाउ योर अपब्रिंगिंग हैज़ बीन विद फीमेल्स। सो जब आपने बोला कि जैसे आप ज़्यादातर महिलाएं आपकी दोस्त रहीं, तो कैसा आपके यहाँ पर मतलब घर पर उसका कैसा रिएक्शन रहा, या जैसे टीनेज में आप है या आप थे, तो उस टाइम पर आपकी सोच और अभी आपकी सोच में क्या परिवर्तन आया है? बहुत मैसिव फर्क आया ही है, बिकॉज जैसे आप जितनी ज़्यादातर आप लेडीज से इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, तो आपको पहली बात तो एक वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि आपने एक्चुअली किसी लेडी को ट्रीट कैसे करना है। फिर चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपकी टीचर हो, देर मतलब मैंने एक चीज़ तो सीखी है, देयर हैज टू बी सर्टन, मतलब ये कोई फेमिनिज्म की बात नहीं है और ना ही कोई ये जेंटलमैन होने की बात है, बट आई पर्सनली फील कि एक प्रॉपर कंडक्ट होता है जिससे आप किसी भी लेडी से बात करते हैं। आपकी फ्रेंड ही क्यों ना हो, आप कितना इनफॉर्मल हो जाए, बट देयर इज अ फाइन लाइन जिसके नीचे आप कभी नहीं जाएंगे। तो वो चीज़ नंबर वन मैंने सीखी। नंबर टू, वो घर में भी फिर रिफ्लेक्ट होता ही है, बिकॉज घर में भी जैसे मेरी छोटी बहन है, मदर हैं, दादी हैं, तो अब तीन लेडीज अलग अलग रोल्स निभा रही हैं, आप उसी में पले बड़े हैं, तो आपको आपकी जिसे कहते हैं ना, आपकी एक फाइन ट्यूनिंग हो जाती है दिमाग में कि अच्छा हर प्रकार की जो लेडी होती है उनकी थिंकिंग अलग है, बिकॉज वो अलग अलग उनकी माइंडसेट है, अलग एस्पिरेशंस हैं, उसको आपको मैच करने के लिए आपको उनसे कैसे बात करनी। तो आई ऑलवेज से यू शुड बी लाइक वाटर। आई मीन यू कांट हैव अ फॉर्मूला कि जी मैं ABCD करूंगा और मैं ऐसी बात करूंगा। आपको देखना पड़ेगा पहले कैसे क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या उनकी नीड्स हैं। एंड आई थिंक सबसे बड़ी चीज, थर्ड थिंग जो मैंने सीखी है, वो है पावर ऑफ लिसनिंग। आई थिंक ये मेरे में बहुत आ गई, बिकॉज जनरली मैं इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन तो था ही, अभी भी हूँ, लेकिन पहले तो बहुत था। तो बहुत बार क्या होता था, कोई भी लेडी होती थी, खासकर जो फ्रेंड्स थी, वो बातें बहुत करती थी, वो आकर सारी बातें कर जाती थी, और मेरे को और भी सही लगता था कि मेरे को बोलना नहीं पड़ रहा, मेरे को सुनना पड़ रहा है। एंड कॉन्वर्सेशन के एंड में उनको फील होता था गुड फैक्टर कि हाँ यार मैं इससे सारी बात कर सकती हूँ, एंड ये किसी को बताता भी नहीं है और समझता भी है। तो धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि ये सिर्फ फ्रेंड्स की बात नहीं है, मदर भी हैं, सिस्टर भी हैं, सबका एक है कि दी वांट टू बी लिसन्ड। तो इतनी फीमेल से इंटरेक्ट करके वो लिसनिंग पावर मैं कह सकता हूँ अच्छे से डेवलप हो रही है। मुझे लगता है ये बात तो आपने बहुत अच्छी हाईलाइट की, क्योंकि जिस चीज़ को लोग काफ़ी नेगेटिव लेते हैं कि लड़कियां बातें बहुत करती हैं और गॉसिप बहुत करती है या जो भी, उसे आपने पॉजिटिविटी में बदल दिया कि यू डेवलप योर लिसनिंग पावर। पर इसमें एक चीज़ जो है, जैसे कि आप कह रहे थे कि जैसे टीनेज से ही आप फीमेल्स फ्रेंड्स के साथ वगैरह रहे, तो जनरली हमारे यहाँ ऐसा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है इस बात का कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे नहीं बिहेव करना चाहिए। देयर इज नो सब्जेक्ट, वी डोंट लर्न इट एज अ सब्जेक्ट। तब से ही आप कॉन्शियस थी, आपने
भी गलतियाँ करके सीखे, या ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आपको याद है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए और फिर आपने सीखा, या अदरवाइज इट वाज़ ओके? नहीं, मैंने काफ़ी, मैं कहूँगा गलतियाँ तो बहुत की है टीनेज टाइम में। मतलब आपको अगेन एज़ यू सेड, कोई गाइड किसी ने ऐसे फॉर्मली गाइड नहीं किया। ठीक है, मदर आपको एक तरीके से बोल देती है कि आप ऐसे ये करना ही नहीं करना, जो सबकी मदर्स करती हैं। बट जैसे मेरे को याद है एक इंस्टेंस, मेरी एक फ्रेंड थी, वो बहुत टॉम बॉयज थी। तो वो सारे हमारे साथ क्रिकेट खेलना, सब कुछ करना, और मैं भी कभी-कभार बीच में भूल जाता था कि वो लड़की है। तो बहुत बार मैं उसको बहुत तू तड़ाक करना, यार वार करना, बट एक पॉइंट के बाद, और उसने कभी मतलब ऐसे वो नहीं दिखाया नहीं कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। बट एक पॉइंट के बाद मुझे बहुत वियर्ड लगने लग गया कि यार नहीं, देखो कुछ भी हो, एक वो सेंस ऑफ आपको वो पता होना चाहिए कि यार शी इज अ गर्ल। बिकॉज मुझे याद है एक बार मेरी उससे बात भी हो रही थी, कुछ हमारी कुछ तू मैं हो रही थी, एंड मैं भूल गया एक सेकंड के लिए कि वो लड़की भी है, शी वांट्स टू, अगेन जो मैंने आपको लिस्टिंग वाली बात बताई है, लड़कों का जनरली क्या होता है, वो ज्यादा बात इतनी नहीं करनी, एक दो लाइनें बोल दी, काम खत्म हो गया। उसके केस में भूल गया, एंड देन आई रियलाइज कि यार नहीं, मतलब यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट इट कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब आप यू आर नॉट फेकिंग इट, बट आपको पता होना चाहिए कि लड़के और लड़कियों में इसका तो फर्क रहता ही है। आप जैसे बात करते हैं, लड़कियों को ज्यादा बोलना पसंद है, और लड़कों को मैं कहूँगा सुनना तो इतना पसंद नहीं होता, बट उनको सुनना चाहिए, सुनना जरूर चाहिए उनको। ये मैं रियलाइज कर चुका हूँ, एंड आई थिंक गलतियां की हैं, गलतियों के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे याद है मैंने कोविड टाइम्स में भी काफी इसके बारे में बुक्स भी पढ़ी, सो दैट थोड़ा एक, चलो फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं, बट एक आप अवेयरनेस बोल लीजिए, नॉलेज बोल लीजिए, वो पढ़ी, कुछ आपने यूट्यूब वीडियोस देखी। सो इट्स नॉट अबाउट, मतलब फिर मुझे क्लैरिटी हुई कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लड़का लड़की, एक्चुअली साइंटिफिकली अलग दिमाग चलता ही है। वो जो हम कहते हैं ना कि लड़कियां वैसे भी मैच्योर होती है ज्यादा, अगर सेम ग्रुप के पकड़ लिए जाए लड़का लड़की, तो लड़की ज्यादा मैच्योर मिलेगी आपको। तो ये सारे डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी से भी इंटरेक्ट करने के लिए। बट हाँ, बिना गलतियों के तो आई डोंट थिंक मेरे से सीखा गया है। आई थिंक कोई भी नहीं सीख सकता, मोस्ट ऑफ अस डू मेक मिस्टेक्स। एंड तो कमिंग टू योर थिएटर पार्ट और योर वर्क पार्ट, तो जैसे आपने थिएटर की बात कही कि अलग अलग एज ग्रुप्स में, और वहाँ पर काफी सारे कैरेक्टर्स भी अलग अलग एज ग्रुप के लोग प्ले करते हैं, जैसे मे बी अ एज्ड पर्सन विल प्ले अ यंग रोल और वाइस वर्सा। सो इस दौरान आपका फीमेल से इंटरेक्शन कैसा रहा, या फिर इन जनरल आई वुड से दैट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो वहाँ पर माहौल एक कैसा आपने पाया विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड, मेल फीमेल में? आई थिंक एक्सपोजर बहुत बढ़ गया, बिकॉज जनरली क्या होता है, आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में होते हो तो आपके एज ग्रुप के ही लोग होते हैं। बट थिएटर जैसी जगह जहाँ अलग अलग एज ग्रुप के लोग आते हैं, मेल फीमेल, और बैकग्राउंड भी उनके अलग होते हैं, तो आपको एक्सपोजर मिलता है कि अच्छा मैं इनसे कैसे इंटरेक्ट करूँ। शुरू में तो आपको ऑकवर्डनेस होती है, बाद में आप सीख जाते हैं कि अगर कोई 60 साल के कोई आ रहे हैं या फिर कोई 18 साल की लड़की आ रही है, दोनों के सोचने समझने में, बैकग्राउंड में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आपको अपने आप को ढालना होगा, दैट्स वन। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक मैंने सीखी है, वो है एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। अब थिएटर में क्या होता है, आप एक्ट कर रहे हैं तो आपको एम्पैथी, आपको पता होना चाहिए कि आप जिसके बारे में भी एक्टिंग कर रहे हैं उसको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, एंड साथ ही साथ आपके को एक्टर को कैसा लग रहा है। एक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि अगर आपका को एक्टर अनकंफर्टेबल है, आपको उसको कंफर्टेबल भी कराना है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो। तो ये वो एम्पैथी आनी है, मतलब जो आपके नेचर, मैं कहूंगा इतने साल से थिएटर हो गया तो आपके नेचर में एम्पैथी का, वो कहते हैं ना, जैसे घोट दिया है अच्छे से, कि आपको किसी से भी इंटरेक्ट करने से पहले आपको सबसे पहले आप ऑटोमेटिकली सोचते हो, अच्छा अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे कैसा लग रहा होता। तो वो चीज इनिशियली ही क्लियर हो जाती है, तो आपके पास जो मैं कहूंगा पेशेंस बोल लीजिए, लिसनिंग पावर बोल लीजिए, वो बढ़ जाती है। जैसे कितनी बार होता है कोई आया है, हम सबके साथ होता है, कोई आया है, कोई आपकी फ्रेंड ही ले लीजिए, वो बड़े इरिटेटेडली आपसे बात कर रही है। अब बड़ा इजीली है आपके लिए इरिटेटेडली वापस बात करना कि यार कैसे बात कर रहे हो तुम इससे। बट अगर अब जैसे हम, मेरे केस में क्या है, मैं ऑटोमेटिकली एम्पैथी आ जाती है, तो पेशेंस बढ़ जाती है कि यार ये ऐसी तो है नहीं, कुछ तो हुआ है, सो दैट अभी इरिटेशन में है, तो क्यों ना थोड़ी पेशेंस बढ़ाई जाए, शी इज इन ट्रबल, लेट्स सी कि क्या बोल रही है, और एंड में निकलता भी वही चीज है। पुटिंग योरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज। एग्जैक्टली, एम्पैथी। राइट, एम्पैथी। तो मुझे लगता है कि जैसे जो आपने बोला, मैं किस चीज़ से कोरिलेट भी कर पा रही हूँ कि हम लोग कई बार कॉर्पोरेट्स में देखते हैं कि सपोज एक नई फीमेल एंट्री आई है या किसी ने ज्वाइन किया है। अब हो सकता है वो लेडी एक पर्टिकुलर स्टाइल में ड्रेस करती हो, या फिर ज़्यादा बात ना करती हो, या ज़्यादा मिक्सिंग ना हो। सो पीपल स्टार्ट जजिंग कि ओके शी हैज़ एटीट्यूड, और शी हैज़, मे बी उनका अनुभव कुछ और रहा होगा पहले, and she must have gone through a lot. It is quite possible, or it can be other way around also. I'm not saying it's only female who suffers, but I think जो आपने बहुत important point ये बोला है, तो मुझे लगता है empathy या किसी को समझना, या पहले
एटलीस्ट एक वो मौका देना कि वो किस स्पेस में है या किस स्पेस से आ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे आपने थिएटर का बताया, उसी तरह आप साइबर लॉ में भी डील करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कई सारे केसेस अभी चल रहा है, डीप फेक वाला है या फिर नेट ऑल्सो और थ्रू यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो पीपल स्टार्ट हरासिंग फीमेल्स। सो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह होगी, मतलब इसकी व्हाट कुड बी द मेंटालिटी बिहाइंड दिस एंड हाउ कैन वन टेक केयर ऑफ दिस इफ अ फीमेल फेसेस दिस? आई थिंक सबसे बड़ी मेंटालिटी जो मैंने अलग अलग केसेस में देखी है वो है दो चीज़ें। एक होता है बदला, जनरली कोई आपका एक्स बॉयफ्रेंड होता है या किसी बंदे से आपको दुश्मनी है, वो करता है ये। दूसरा जिसको हम कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर, कि मतलब शायद आपने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है या आपने थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया होगा, लेकिन उसको मजा आ रहा है आपकी बर्बादी देखने में। तो ये दो मेन मोटिव्स मैं बोल सकता हूँ, मेन नेचर बोल सकता हूँ, जो जनरली दिखते हैं हमें। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब मेरी एक बार किससे बात हो रही थी एंड उन्होंने कहा मेल्स फीमेल्स दोनों ही सफ़र करते हैं इंटरनेट पे। हमेशा सिर्फ फीमेल्स को क्यों हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं, इस चीज़ को हम क्यों डालते हैं, मेल्स पे कोई ध्यान क्यों नहीं देता। तो मैंने कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट, मेल्स भी सफ़र करते हैं बट परसेंटेज फीमेल्स का ज़्यादा है, नंबर वन। नंबर टू, दोनों को डील करने का तरीका बहुत अलग है। एंड ये कोई माने ना माने, मैं हमेशा बोलता हूँ मेल फीमेल की बात बाद में आती है, बट कोई भी कॉमन मैन के लिए उसकी रेपुटेशन सब कुछ है। अगर आपकी रेपुटेशन ही खराब हो रही है, चाहे वो कोई फेक वीडियो बना रहा है, कोई फेक पिक्चर बना रहा है, कोई नहीं चाहेगा कि वो बाहर आए। तो ये कुछ कपल ऑफ चीजें जो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट फीमेल्स ऑल्सो, बट सब लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। पहला, आप कोई भी अननेसेसरी पर्सनल डिटेल्स बाहर मत शेयर करिए, जो आपको लगता है विच इज एक्चुअली पर्सनल टू यू, या आपके लव्ड वंस को पता होनी चाहिए। बहुत लोग ये करते हैं। दूसरा, आप रैंडमली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते इंटरनेट पे, बिकॉज यू डोंट नो आज आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो कल को आपके ही अगेंस्ट हो गया तो क्या क्या यूज कर सकता है। मतलब ये सुनने में बड़ा एक नेगेटिव थिंकिंग लगेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये इंटरनेट पे होता है। एंड थर्ड थिंग इज, आई थिंक देखिए एक पॉइंट के बाद जैसे डीप फेक्स हैं, अब कोई, मैं ये तो बोलूंगा नहीं किसी को कि आप सोशल मीडिया छोड़ दो और आप फोन फेंक दो और आप चले जाओ कहीं और, बट हमें इंटरनेट हमारे पास है, हमें इसी इकोसिस्टम में जीना है। बट इतना जरूर है कि अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें आप करेंगे और खासकर अपने आसपास की सराउंडिंग से अवेयर होंगे, अगर आपको ये पता हो कि डीप फेक क्या होता है, आपको ये पता हो ये काइंड ऑफ क्राइम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। 100% सिक्योरिटी तो कहीं पे भी नहीं है, बट आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं कि कैसे आप बच सकते हैं। राइट, तो आई थिंक ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई इवन फॉर फीमेल्स कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन आउटसाइड एंड जैसे कि हम कई बार देखते हैं ना कि इवन इन मूवीज दे शो लिटरली पीपल पुट देयर स्टेटस आउट मिनट टू मिनट या आवर टू आवर वाला उनका स्टेटस जाता है कई लोगों का। सो इजीली एक पैटर्न या काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव सो। सो यस, दिस डिजिटल थिंग इज़ वेरी क्या कहेंगे उसे, ट्रिकी डाइसी है। ऑल्सो, ट्रिकी, डाइसी, इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड at times it becomes difficult to handle. That's very true. Coming back to our topic, now that आप अलग-अलग प्रोफेशंस में रहे हैं, be it थिएटर, be it your work profession, आपको क्या महसूस होता है जब आप हम कहते हैं कि फीमेल्स यू नो सर्टन उनके साथ काफ़ी चीज़ें बहुत स्टीरियोटाइप जुड़ी होती हैं, that they cannot work after getting married or after bearing a child, or maybe their work slows down, yeah, what do you call, late nights hold the females, so मतलब दिक्कतें आएंगी if you have female at workplace. so आपका उसके बारे में क्या राय है, या फिर जो लोग ऐसा सोचते हैं या इस तरह से फीमेल्स की तरफ उनका एटीट्यूड है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक चीज तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पोस्ट कोविड मैंने इसमें काफी फर्क देखा है। मतलब एक एविडेंट फर्क देखा है, चाहे वो सोशल मीडिया का आप एक्सपोजर बोल लीजिए। मेरे को याद है कोविड में बहुत लोगों ने, सब घर बैठे हुए थे तो उनका एक्सपोजर बढ़ा इंटरनेट पे, उन्हें चार और नई चीज देखी है जिससे उनका झांका खुला है। तो उनका जो माइंडसेट है या उनके देखने का नजरिया, और मैं सिर्फ ये यंग जनरेशन की बात नहीं कर रहा, खासकर ओल्डर जनरेशन, वो हल्का सा बदलना शुरू हुआ है। नंबर वन। नंबर टू, मैं खुद यंग जनरेशन का पार्ट हूँ, तो गुड पार्ट है कि यंग जनरेशन में तो कितनी फीमेल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हेडेड है, जो कि आई थिंक रिक्वायर्ड है स्ट्रॉन्ग हेडेड होना। क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आप फिर उन स्टीरियोटाइप्स में घिरते चले जाएंगे।
कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग हेडेड होंगे तो हाँ, शायद 10 में से आपके 7-8 कम हो जाए, 1-2 फिर भी रहेंगे, बट एटलीस्ट वो 7-8 चीजों से आप बाहर आ गए। तीसरा मैं कहूंगा, ठीक है स्ट्रॉन्ग हेडेड होना सही है, बट कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी हल्की सी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई मतलब मैं इतना मानता हूँ कि चाहे मेल हो फीमेल हो, पार्टनरशिप है। अगर आप किसी के साथ मैरिज कर रहे हैं, आप फ्रेंडशिप भी हो रही है आपकी, इट्स अ पार्टनरशिप। आप, मैं मानता हूँ फीमेल्स को चलिए आप 60-40 दे दीजिए कि थोड़ा स्टीरियोटाइप्स है, बट 80-20 या 100-0 नहीं हो सकता। यानी कि कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप स्टीरियोटाइप बोल के आप सारे कामों को अवॉइड करें। आप कुछ चीजें पकड़े, बट वो तब हो जब आपको लग रहा है आपका पार्टनर भी इक्वल आपका साथ दे रहा है। जैसे मैंने कितने, हम लोग लीगल मैटर्स देखते हैं तो कितने केस में होता है, बंदा 10 में से 8 चीजें मान रहा है, 1-2 चीजें वो एक्सपेक्ट करता है थोड़ी मेरे से तुम तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, बट दूसरा बंदा एडमेंट है, तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाएंगे, तब कहीं ना कहीं वो काउंटर प्रोडक्टिव है, वो बैकफायर ही करेगा आपके ऊपर। So I think flexible approach is required, a little flexible approach, understanding, and the good part is that लोगों का धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूंगा रातों रात माइंडसेट चेंज हो रहा है, बट धीरे धीरे जरूर चेंज हो रहा है। आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ें आपने हाईलाइट की है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। यू कांट से कि वट एवर आई से इट डजेंट हैपन, एंड चेंजिंग ऑफ थॉट प्रोसेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। कमिंग टू दिस पॉइंट, जैसे हम देखते हैं कि अभी टीनेज हैं, टीनेज बच्चे हैं, या फिर ग्रोइंग ईयर्स, स्पेशली बिटवीन 13 to 18, एक्सपोजर उन्हें बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। सो हमारे यहाँ पर रिगार्डिंग सेक्स एजुकेशन या फिर मेल फीमेल इंटरैक्शंस, उतना ज़्यादा टॉपिक्स ये बात नहीं होती हैं, मीन्स ओपनली एटलीस्ट, एंड देयर इज़ नो सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी ऑफ कोर्स which speaks about all this. So I think eve teasing, molestation, या ये सारी चीजें ओके, ये तो होता ही है। इफ यू, आई थिंक इफ यू आस्क अ फीमेल, आई वुड से 100% ऑफ देम or 99.99% would say that yes, they have undergone some kind of ill treatment, be it touching, be it harassment, be it passing lewd comments or something like that. So ये सोच कहाँ से आती है, या फिर ये इतना गट्स टीनेजर्स में कहाँ से आ जाता है? दे फील कि हम कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं कैसे भी, और वो रिटेलिएट नहीं करेंगे, फीमेल्स वोंट रिटेलिएट, और जनरली चुप रह जाती है। तो ये सोच ऐसी क्यों है, ऐसा आपको लगता है? मतलब जस्ट आपका व्यू पॉइंट, देयर इज नो करेक्ट और रॉन्ग आंसर टू दिस। मैं सिर्फ एक सोच के बारे में समझना चाह रही हूँ कि जब व्हेन बॉयज आर ग्रोइंग अप, और क्योंकि हमारे यहाँ पर ये एक फॉर्मल पैटर्न नहीं है इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, तो कैसे क्या सोचते हैं, या कैसे उनका नेचर हो जाता है? देखिए, जैसे मैं काफ़ी ट्रेनिंग्स हो गई या लीगल मैटर हो गया, आप बच्चों से बहुत इंटरेक्ट करते ही हैं, तो मैंने सिर्फ इस जो आपका क्वेश्चन है उस रिगार्ड से मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें ऑब्जर्व की हैं अपने एक्सपीरियंस से। पहला, जो कंटेंट, अब बच्चे देखिए जब टीनेज में होते हैं उनको पूरी तरह समझ नहीं होती, मैच्योर नहीं होते वो, लेकिन इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बहुत है, सब कुछ उनको मिलता है आपके पास। आप देखिए ना, 2-3 साल का बच्चे के हाथ में आईपैड है, तो टीनेजर्स तो बहुत दूर की बात हो गई कि उनको जो पूरा एक्सपोजर मिल रहा है। लेकिन ये जो कंटेंट है, चाहे वो आप 18+ कंटेंट बोल लीजिए, मूवीज बोल लीजिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सामने वो कंटेंट इनके रखता है, एंड ये इनको, दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि ये कितना रियल है कितना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं कोई कंटेंट देख रहा हूँ और मुझे कोई मूवी में एक इम्प्रैक्टिकल सी बात या नॉन रियलिस्टिक बात दिखाई जाएगी, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़का लड़की के इंटरेक्शन में, तो मेरे माइंड कहेगा कि नहीं यार, ये तो सिर्फ मूवी है, तो मतलब ये उसी में ही जा रहे हैं, ये रियलिस्टिक नहीं है। बट जो टीनेजर है उसका दिमाग ऐसे नहीं चलेगा, वो जो चीज सामने वो लिटरल लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मूवी में कोई लड़का किसी के पीछे पड़ा हुआ है लेडी के, और वो लेडी कुछ नहीं बोल रही, शी इज, लेट्स से शी इज लाइकिंग द अटेंशन, तो वो कभी नहीं सोचेगा कि यार ये तो सिर्फ एक केस हो गया, जरूरी नहीं हर लेडी ऐसे रिएक्ट करे, वो इसको लिटरल ही लेगा। तो एक पहली चीज ये है, आप हर चीज लिटरली लोगे, अनरियलिस्टिक चीजें, तो आपका माइंडसेट वैसा बनता जाएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 मैंने देखा है कि सप्रेशन बहुत है, एज यू सेड करेक्टली, कि इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। वो सोसाइटी की बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट ये ह्यूमन नेचर है। आप जितना जिस चीज को दबाएंगे छुपाएंगे, उतनी क्यूरियोसिटी लेवल और बढ़ेगी। अगर मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, आप उसको कहेंगे कि इसको मत छेड़ना, इसके इसके अंदर तुमने हाथ नहीं डालना है, वो वही हाथ डालेगा। लेकिन अगर आप उसको समझा दे कि इसके अंदर हाथ, आप अच्छा खासा उसको रीजनिंग दे दे, तो उसकी क्यूरियोसिटी लेवल खत्म हो जाती है।
तो हमारे यहाँ क्या है कि चलो अनरियलिस्टिक आपने देख भी लिया, बट वो कल्चर नहीं है कि आप वो चीज़ अपने पेरेंट्स से क्लैरिफाई कर सको। अगर और देखिए ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, बाहर भी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बट थोड़ी ओपननेस ज़रूर है कि लोग अपफ्रंट पूछ लेते हैं कि देखो जी मैंने ये देखा, और पेरेंट्स भी शाय भी नहीं करते बताने से कि देखो जी ये तो गलत बात है, रियल में ऐसा नहीं होता। तो आई थिंक अगर वो स्टेप वन कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक कंटेंट आपने देख लिया, आप उसको अपनी रियल में उतारने वाले हैं, बट कोई बड़ा कोई पेरेंट ओपन हो, तो आपका कहीं ना कहीं फिर रियलिटी चेक सामने हो जाता है। बट हमारे यहाँ दोनों चीजें नहीं है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, कोई बताने को ज्यादा है नहीं, तो लोग मतलब वो कहते हैं ना गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ बाहर जाते हैं और गलत रिएक्ट करते हैं। तो वो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसकी वजह से आप ईव टीजिंग बोल लीजिए, आप किसी के पीछे पड़ना बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ये सारी चीजें होती हैं। I think yes, what you are saying is very true, and maybe we don't have an immediate solution also to this unless each person takes interest and takes it forward. वन गुड पार्ट इज, जो मैंने आजकल देखा है कि बहुत सारे जो बड़े सिबलिंग्स हैं वो ये रोल अच्छा निभा रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स और छोटे सिबलिंग में एज गैप बहुत बड़ा है, बट जो आप एल्डर सिबलिंग है उसमें इतना बड़ा गैप नहीं है। तो एल्डर सिबलिंग जानता है कि मेरे को किसने गाइड नहीं किया था, तो क्यों ना मैं छोटे सिबलिंग को गाइड कर दूं। तो वो कहीं ना कहीं अच्छे, कोई काफी केस में मैं रे ऑफ होप देखता हूँ। I think ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है if all the siblings start taking responsibility, तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन हो सकती है ये चीज़ें, सो दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वो क्या कर रहे हैं और कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली मैंने भी एक एडोलेसेंस एजुकेशन का जब लेक्चर लिया था, सो जब मैंने उन्हें यही बात बताई कि यदि आप कुछ देखते हैं या कहीं पे यू फील अनकंफर्टेबल, यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स एंड आस्क देम अपफ्रंट। तो मुझे भी उन्होंने यही सवाल पूछा कि व्हाट इफ दे आर नॉट ओके टू आंसर, व्हाट इफ दे आर जस्ट सेइंग कि अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, अभी तुम चुप रहो एंड ऑल दैट। तो एक्चुअली मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आप पेरेंट्स को नहीं, एवरी पेरेंट इज डिफरेंट। बस मैं यही कह पाती हूँ कि आपकी शायद फैमिली में कोई तो एक पर्सन होगा, चाचा चाची, दादा दादी, कजिन्स, मतलब अंकल आंट, कोई तो होगा। इन वन फैमिली एटलीस्ट वन पर्सन इज देयर whom you are very close to, या वो फ्रेंडली होके बात कर लेते हैं आपसे, या आप कुछ सब कुछ शेयर कर पाते हो। तो इफ पॉसिबल यू ट्राई टू शेयर इट विद देम, बिकॉज कई बार ये भी देखा गया है कि जब भी फीमेल्स कुछ मतलब अनवांटेड इवेंट्स फेस करती है और घर में बताते हैं, तब भी पेरेंट्स एट टाइम्स दे डोंट बिलीव, या फिर दे आर ओके टू सप्रेस दैट। तो ये चीज़ें भी जैसे आपने बोली, ये बहुत ज़रूरी है। So, just coming to our closing question, I want to ask you, what is that one message that you would like to give to men about their behavior towards women? आई थिंक द सिंपल एंड अगेन, आप जैसा आपने म्यूचुअल कही है, फीमेल्स के लिए भी है, मेल्स के लिए भी है, खासकर मेल्स के लिए, कि एक कंडक्ट होता है जिससे आप दूसरे जेंडर को आप उस तरीके से उससे बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं ये इसका मतलब फेक होना, नहीं। आप देखिए, फीमेल्स मेल्स दोनों की साइकोलॉजी अलग है, बायोलॉजी अलग है, सब कुछ ही अलग है और बहुत ऑपोजिट्स हैं। तो जब ये ऐसे दो बीइंग्स जिनका सब कुछ ही अलग है, आप सेम तरीका नहीं अपना सकते दोनों के लिए। फीमेल्स को समझना पड़ेगा, अलग तरीका होता है मेल से डील करने का, और सिमिलरली मेल्स को भी समझना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है नेचर की कि ये आपको टेस्ट करता है। यानी फीमेल्स जब मेल्स से बात करती हैं तो उनके लिए मेल्स ऐसे रिएक्ट करेंगे जो उनकी पेशेंस टेस्ट करेगा, और सेम मेल्स के लिए होगा कि बिकॉज वो उनके नेचर में नहीं है, मतलब उनको वैसा कुदरत ने नहीं बनाया। लेकिन यही मजा है आई थिंक नेचर का, कि अगर आपको दूसरे जेंडर के साथ ऑब्वियसली शादी करनी है, रहना है, तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला अपनाते हैं कि हम ऐसे अपने फ्रेंड से बात करेंगे, ऐसे फैमिली से बात करेंगे, अपने एक्वेंटेंस से भी ऐसे बात करेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर बंदा अलग है। और अगर मैं एक सेम जेंडर की बात करूं तो उसमें भी आपके वेरिएशंस आते हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। तो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। राइट, आपने बहुत अच्छी बात कही और इम्पोर्टेंट बात कही कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मेल फीमेल, एंड ऑल्सो ईच पर्सन इज डिफरेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि एक कॉन्वर्सेशन एक पर्सन के साथ क्लिक हो गया तो दूसरे के साथ भी सेम चलेगा। एवरीवन हैज देयर ओन इश्यूज, ओन बैकग्राउंड, एम्पैथी दैट हैज कम्स इन पिक्चर। सो बहुत सारे उसमें लेयर्स हैं, बिकॉज it's a complex thing. But I think, Sakshar, it was wonderful, really wonderful to know your views, and I think you have a lot of clarity और बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने हमें बताए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो, एंड
I think it's really wonderful. Thank you, the pleasure is all mine.